हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिकॉर्डिंग वाली साजिश। जी हां, एबीपी न्यूज पर अब आप सुनने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की आवाज। यह आवाज एक रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग एक फोन कॉल की। यह रिकॉर्डिंग कथित तौर पर जनवरी 2019 की बताई जा रही है। इसमें आप सुनेंगे सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती की आवाज। साथ में आवाज होगी रिया के पिता इंद्रजीत और भाई शोभिक चक्रवर्ती की। इसके अलावा सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी की आवाज भी होगी। तो सबसे पहले ये आवाजें सुनिए, फिर आपको हम बताएंगे आखिर ये लोग किस मामले को लेकर बात कर रहे हैं। At this point in time, I just wanted a request as a favor to us. And how should we just close all, save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday, and that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case, so the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. And to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of trustees who actually decide, and they have a parameter as you will guide us on that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I don't think we're there yet. I think really. Yeah, he had this insistence yesterday. Trust me. There's a word of trust here. No, you've not seen worse. I just want to know how this trust thing functions. I mean, I have no idea. I'm a layman. All right. So you're creating a child. You're giving birth to an entity in which there will be set rules and regulations, and which will be defined that this is how the trust will function. And it's a private trust because it's for the benefit of a certain set of people. And the money is pooled. Yeah. So to put it simply, in a trust there are three parties. Okay. One is the settlor, the person who brings in something into the trust, right? Because the trust needs to have some assets that uske liye to humne trust create kiya hai, correct? So let's say I'm the settlor. For example, I bring in X amount of say money or property or whatever into the trust. Okay. Then comes the trustees, the persons who are responsible to deal with whatever I have brought into the trust. So let's say that Riya and Shruti are the trustees. Okay. And then the third party is the beneficiary. Who is the beneficiary of the trust? Say in this case it will be him, right? Now the law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that okay, this is the asset that the settlor brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? So the trust doesn't become the trustees don't become the owners, right? They are only like guardians or gatekeepers, or they are watching a certain property, and they have to make sure that they use the assets, whether it's money, whether it's property, in a manner that is always in the highest and best interest of the beneficiary. So a lot of times you'll see that parents actually set it up for their children or grandchildren. और जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ यही रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि कुछ और भी रिकॉर्डिंग्स हम आपको सुनाने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर एक के बाद एक कई खुलासे होने जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल भी खड़ा हुआ है और बड़ा बुनियादी सा सवाल है, आखिर यह रिकॉर्डिंग क्यों? सुशांत की आवाज सुनो और रिकॉर्डिंग पर सवाल क्या है? अनौपचारिक बातचीत की रिकॉर्डिंग क्यों की गई? इसके पीछे आखिर क्या मकसद रहा होगा? रिकॉर्ड करवाना आगे की प्लानिंग थी क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, समझिए जरा इसे। बातचीत से क्या साबित करने की कोशिश की गई? यह पूरी जो बातचीत है, आखिर क्या प्रयास किया गया है? इसे रिकॉर्ड करके क्या बताना की कोशिश की गई है? बातचीत के दौरान रिया के पिता क्यों हैं वहां पर? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल कई हैं और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित और मनोज वर्मा, हमारे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सुनील शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुशांत के जिम के दोस्त रहे हैं। आभा सिंह है, मशहूर वकील हैं, आपसे भी हमारी बातचीत होगी। दीपक रहेजा साहब हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर संदीप वोहरा के पास भी हम चलेंगे। लेकिन मनोज, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जरा इस रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए, कुछ और भी जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए अखिलेश, अगर आपने रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना हो, मैं भी अभी सुन ही रहा था इस रिकॉर्डिंग को, और इसमें आप सुशांत की आवाज पर अगर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं सुशांत इस रिकॉर्डिंग में बीमार नजर आ रहे हैं। और
वो बात कर रहे हैं कहीं दूर जाने की, वो बात कर रहे हैं यहां से निकलने की, वो एक्टिंग छोड़ने की बात कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि वो एक्टिंग छोड़ना चाहते थे? और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में भी इस रिकॉर्डिंग में बात की। अगर आप ऑडियो को आगे सुनवाएंगे दर्शकों को तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी बीमारी के बारे में भी इसमें बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये रिकॉर्डिंग जो की गई है कोई बड़ी साजिश हो सकती है। आखिरकार ये रिकॉर्डिंग क्यों की गई, वहां पर रिया क्यों मौजूद थी, वहां पर श्रुति क्यों मौजूद थी, रिया के पिता वहां पर क्यों मौजूद थे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। रिया से लगातार हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं लेकिन रिया बात करना नहीं चाहती है। फिलहाल सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन ये रिकॉर्डिंग अपने आप में बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। अखिलेश, बिल्कुल, बाकी मेहमानों का हम रुख करें उससे पहले जितेंद्र, इसी पर एक आपसे भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके से रिकॉर्डिंग की गई अनौपचारिक बातचीत है, आखिर इस तरह की जो बातचीत हो रही है उसे कोई क्यों भला रिकॉर्ड करेगा? क्या इन सब के पीछे माना जाए कुछ सुनियोजित साजिश? देखिए, यहाँ पर मैं दो बातें रखना चाहूंगा। एक तो इस रिकॉर्डिंग से इस बात की तस्दीक हो रही है जो सुशांत के परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से सुशांत के इन्वेस्टमेंट्स पर, सुशांत के पैसे पर रिया का इन्फ्लुएंस था और किस तरह से कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है और उसके जो बैंक अकाउंट्स थे उन पर किस तरह से रिया की चलती थी या उसके परिवार वालों की चलती थी। एक तो इस बातचीत से उसकी तस्दीक हो रही है, वो सामने आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस बातचीत को, आमतौर पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बातचीत करता है, कुछ प्लान्स वगैरह बनाता है तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन इसको रिकॉर्ड क्यों किया गया? अगर ये रिकॉर्डिंग कर ली गई है तो आगे इसका किस तरह से इस्तेमाल होने वाला था ये जानना बेहद जरूरी है। और अभी ये रिकॉर्डिंग, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में है और अगर सीबीआई अपनी जो जांच कर रही है उसमें इसको बतौर सबूत इस्तेमाल करते हुए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो शायद इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि आखिर में इस बातचीत को रिकॉर्ड क्यों किया गया। जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, जो अलग अलग जगह पर पैसे लगाने की बात हो रही है, तो उसको आखिर किस पर्पस से रिकॉर्ड किया गया? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, और इस पर हम बाकी मेहमानों से बातचीत करें उससे पहले जरा एक और ऑडियो क्लिप अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जैसा ऑडियो से पता चलता है कि पैसे को लेकर फंड मैनेजर से बातचीत है, पता यह भी चलता है कि पावना में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होने की तैयारी थी। तो रिकॉर्डिंग में बॉलीवुड छोड़ने की बात कर रहे हैं सुशांत, पैसे को लेकर भविष्य की प्लानिंग भी है। सुनिए आप। Banks now offer services. Lawyers generally always. Lawyers have done. We set up trustee companies. Like for example, I do a lot of. We handle all the Bori trusts in Sosafi Hospital, SBUT, etc. We have companies that are corporate trustees, so that it's. Correct. So it really. I have another question. Now, for example, if we have say 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it. That still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. You can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I also personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah, and my bigger concern is this, that honestly at this point of time, any contract that is being arrived at is going to be null and void. Right. He's not. A true legal definition is that you're not in a sound state of mind. Correct. So whatever we contract today is null and void. And that's my biggest concern. Fair enough. So before that, I feel that setting up a trust is done in far more extreme situations. I know for us, Sushant, this is critical. I understand what state of mind you're in, but believe you me that this is still not a situation where we would set up a trust. Okay, there are better ways of putting people in charge and monetizing your assets and making sure that it is not just going to get depleted and is enough to last you for a few years to come. There are ways to do that. Your money can work for itself and generate more income. Exactly, we need that. That is the concern, correct? We need correct me if I'm wrong, but we want to make sure that I should get X amount of rupees a month to make sure that my expenses, my rent, etc., is being taken care of without me needing to just deplete my savings. Correct.
there are many other ways of doing that instead of setting up a trust. That's right? what It's we what need. people would have done in their normal day-to-day lives, right? Sometimes if you have a chunk Anyway. of money saved, you buy maybe I'll buy a shop and give it on rent and I'll get income from that rent. That's one thing. अब आप जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे थे और जो रिया बातें अभी कह रही हैं, कितना बड़ा इसमें विरोधाभास है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं और आभा सिंह जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा। आप मशहूर वकील हैं, आपकी समझ क्या बताती है? एक और तो रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि मुझे फाइनेंशियल मैटर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो बातचीत थी इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अंदर तक की न सिर्फ उन्हें जानकारी थी, बल्कि वो बाकायदा वहां पर सलाह दे रही हैं। बिल्कुल, इसमें दो चीजें साफ होती हैं कि करना चाहते थे, अपने एसेट्स को स्टेबलाइज करना चाहते थे, लेकिन इसमें जो ये एक अनसाउंड की बात हो रही है, तो वो जो उनकी हेल्थ की बात हो रही है उसको भी ध्यान देने की बात है। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं वो इससे बाकी चीजें कोलैबोरेट करेंगी। लेकिन ये बात सही है कि रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रिया का उनकी लाइफ में, क्योंकि वो उनकी लिव इन पार्टनर थी। और आपको जैसे मालूम होगा कि कानून में भी लिव इन पार्टनर के बड़े अधिकार होते हैं। अगर उस रिलेशनशिप से बच्चे होते हैं तो उनको भी प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि रिया उनकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ थी। लेकिन ये जो फोन रिकॉर्डिंग की बात होती है, तो अक्सर मैंने देखा है लोग फोन रिकॉर्ड रखते हैं ताकि जो बाद में अगर उसको रीरन करना हो तो वो रिकॉर्ड करके उनको काम आती है। लॉयर्स भी बहुत सारे फोन रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्योंकि कब क्लाइंट क्या बोलेगा और क्या बाद में पलट जाए। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग करना कोई अनहोनी बात नहीं है। नहीं, और आभा जी जो आप कह रही उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, किसी क्लाइंट के साथ बातचीत में आप रिकॉर्डिंग करें और एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ, लिव इन पार्टनर के साथ बातचीत को आप रिकॉर्ड करें, उसमें फर्क है। अब ये तो रिया का क्या मानसिक वो था, क्या मेंटालिटी थी, वो हर चीज रिकॉर्ड करती थी या सिर्फ सुशांत से बातें रिकॉर्ड करती थी, ये सीबीआई की जवाबदारी है कि वो पता करे कि वो सिर्फ यही कॉल्स रिकॉर्ड करती थी या वो हर किसी से जो बात करती थी वो रिकॉर्ड करती थी। लेकिन आज 9 दिन हो चुके हैं और सीबीआई को सच्चाई तक पहुंचने में लगता है अभी कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ईडी आके चली गई। ईडी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। 15 करोड़ का हिसाब आप किसी को नहीं दे पाए, देश किसी को नहीं दे पाया। लोग सिर्फ जो है, मैं कहूंगी, एक फिशिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक मीडिया का जमघट जो है एक कहानी बना के चल रहा है। आप सही कह रही हैं, सवाल कई हैं, जवाब मिलने अभी बाकी हैं। रिकॉर्डिंग वाली साजिश, एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। हम आपको कई ऑडियो क्लिप सुनवा चुके और आगे भी सुनवाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, जिस तरह की बातचीत रिया चक्रवर्ती कर रही हैं उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी मंशा सवालों के घेरे में है। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग वाली साजिश, दरअसल कुछ ऐसी बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आई है जिससे रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हम आपको उस बातचीत का एक अंश पहले सुनवाते हैं, फिर बाकी मेहमानों से हम बात करेंगे। Are you traveling anytime soon? No. There for a while. You're still in Juhu, the same place. I'm here only mostly, but So what is the, just to have an idea, the mix, like in a diversified portfolio? I know But very typical little. investment bankers will look at 30% equity, 40% debt, Like that. 20% of liquid, and It's the same. All that balance. standardized. It's the They'll give a same different thing. jargon, same thing, Yeah. same chart papering But into the different versions. And safest, I mean, Yeah, it should be safe also. No, and I think the most popular vote goes to mutual funds only. It's just that what are the kinds of mutual funds you pick up, and even in that they have funds that they rank every single quarter as, who are the most highest performing funds. The other is blue chip stocks and shares, but honestly for that he needs to be involved also. So I would say not right now. That pehle kiya hota was a different thing, but not right now. So easiest is to just park it in a good portfolio of mutual funds and see what you But get. we are not going to one fund house or something like that. so we'll either appoint an AMC, maybe split the total fund into 2 AMCs. Correct. That you handle this portion, you handle, and see who Like returns not to better. give it all in the hands of one person and say, "Abhi aapke hisab se karo." Karo, We don't want to do Yeah, that. Because see, they'll also have their own sort of That's relationship. with everybody. No, we have tested everybody over the last 25 years, and we have realized everybody goes after money. Eventually, splitting and everything helps. No, that's fine, sir. Even if somebody goes after money, it should be a win-win for everyone. But they keep on churning the portfolio. They, every 3 months they'll say, "ये scheme अच्छा है, इसमें डाल दो, यहाँ से निकालो, वहाँ डालो," and then they keep making their commission out of it. So Correct. Yeah.
some of the LIC schemes are also now very good. Yeah, but they don't give you more than 5-6% a year. Oh really? Very pathetic rate of returns. Very pathetic. If you do it for the purpose of insurance, it's good. It's good, yeah. Not for investment. He doesn't have health insurance also. No, कुछ नहीं. nahi hai. This treasury fund, we could have claimed so much. Yeah. I don't think they give it to Michael. No. By the way, Of course they do. You have categories of health insurance that you sign up for. so there is nothing like that. It is physical illness for which you pay. It has nothing to do with This medicines and all Yeah, मेरा phone ले आना नीचे से. get covered. not these. I am more interested in covering you for the rest. Like a term plan, like. तो ना सिर्फ ये सलाह बल्कि आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ऑडियो क्लिप की बातें सामने आई हैं, ये तो समझ में बात आ रही है कि सिर्फ सलाह नहीं दे रही थी फाइनेंशियल मामलों में रिया, बल्कि कंट्रोल भी कर रही थी। पायल रोहतगी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पायल, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है, बहुत बड़ा विरोधाभास है। रिया कह रही है कुछ इन दिनों और ऑडियो क्लिप में जो बातें हैं उससे कुछ और कहानी सामने आ रही है। जी हाँ, रिया तो एक साबित हो चुकी है। वो कहती है कि सुशांत फोबिया था, फिर सुशांत का प्लेन चलाने का वीडियो आ जाता है वायरल, फिर अब वो कह रही थी कि वो कंट्रोल नहीं करती थी, सुशांत से मैरिजुआना छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, मगर उसके व्हाट्सएप के सारे ड्रग रिलेटेड चैट्स पब्लिक हुए हैं। अब आपने ये ऑडियो मुझे सुनाया जहां पर वो फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल कर रही है, मगर कहना चाहती है कि मैं तो कंट्रोल कर नहीं रही थी। तो रिया इज ऑब्वियसली अ लायर। इसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमारे को फैक्ट्स चाहिए, सबूत चाहिए टू नेल हर डाउन, बिकॉज कहीं ना कहीं शी इज इन्वॉल्व्ड इन द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। डॉक्टर संदीप वोहरा भी मेरे साथ हैं, देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर संदीप वोहरा, एक बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, बड़ा बुनियादी सा सवाल है और हमारे तमाम दर्शकों के मन में भी होगा। जब इतना बढ़िया रिश्ता है, लिव इन में आप हैं, किसी बातचीत को क्या कोई रिकॉर्ड करता है क्या? देखिए, यही क्लियर नहीं हो रहा है कि रिकॉर्डिंग क्यों की गई, वो कहना मुश्किल है। बट एक पॉइंट ये बड़ा क्लियर आ रहा है कि इस पूरी कन्वर्सेशन में जो इससे पहले वाली क्लिप आपने सुनाई, उसमें श्रुति मोदी बोल रही है कि इस स्टेज पे अगर कुछ भी साइन किया जाएगा वो नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट की बात हो रही है। तो इस क्लिपिंग में ये चीज भी क्लियर चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मेंटल स्टेट उनकी किसी भी तरीके से उस वक्त जबकि रिकॉर्डिंग है राइट फ्रेम ऑफ माइंड में वो नहीं थे, इसलिए ये चर्चा हो रही है। ये क्लियर कट है, क्योंकि ये नल एंड वॉइड की बात तभी होती है कि अगर आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो, आप कहीं साइन करते हो या आप कोई भी स्कीम को करते हो, तो जो ट्रस्ट बनाने की बात पे वो बात कर रही है, वहां पे वो नल एंड वॉइड की बात कर रही है। इसका मतलब है कि वो सब लोग इस बात को जानते थे कि वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग हुई वो नहीं है। बिल्कुल, और नहीं है तो सवाल तो ये भी है ना पायल, आप ही से मैं थोड़ा समझना चाहूंगा इस पर और उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो ही क्यों रही है? इस कदर आर्थिक लेन देन की बात क्यों हो रही है? अगर मान लीजिए उनकी मानसिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं है तब भी। नहीं, मैं जहां पर हूं मुझे नहीं समझ पड़ रहा कि आपके पास ये ऑडियो आया कहां से। इज इट जस्ट एन ऑडियो और इज इट ऑडियो गिवन टू यू बाय समबडी? ये ऑडियो कहां से आया? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड किसने रिकॉर्ड किया ये ऑडियो। उनके फोन पे क्रैक हुआ है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग? जो आवाज है पायल, जिस तरीके से आवाज आ रही है रिया की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि उन्हीं की आवाज सबसे ज्यादा क्लियर है। अमूमन हम किसी से बातचीत करते हैं और जिसके पास फोन होता है, जो रिकॉर्ड करता है, उसकी आवाज सबसे ज्यादा क्लियर होती है उसमें। तो ये तो एक अंदाजा लग रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब आप देखिए, अगर वो खुद के फोन से ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रही है तो मतलब वो किस लेवल तक सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग कर रही थी। अगर सुशांत सिंह राजपूत का मेंटल स्टेट इतना ठीक नहीं था एंड शी वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो आई थिंक उसने फॉर्ज साइन भी किए होंगे, क्योंकि श्रुति मोदी ने कहा है कि उसने 3 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत को देखा नहीं था। शी यूज्ड टू जस्ट गेट हर चेक। अब वो चेक के ऊपर कौन साइन करता था हमें नहीं पता। एंड कहीं ना कहीं ये जो आईटी रिटर्न्स में 32,000 का मैंने कुछ पढ़ा है, ड्राई फ्रूट 32,000 ड्राई फ्रूट्स, ये जो ड्राई फ्रूट्स वर्ड है ना, दैट ड्राई फ्रूट्स वर्ड ऑल्सो कुड बी रिलेटेड टू सम ड्रग थिंग, जिसका इसने ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन किया होगा और सीए की बुक्स में लिखा होगा कि आप इसको ड्राई फ्रूट्स करके बोल दो, क्योंकि कोई इतना सारा ड्राई फ्रूट्स थोड़ा मंगाता है और सेम फिगर के साथ। तो दिस लेडी इज अ वेरी बिग प्लेयर, मगर इसकी सच्चाई धीरे धीरे बाहर आएगी एंड प्रूफ के साथ यू हैव टू नेल हर। जी आबा जी, जरा मुझे ये बताइए, आप कानून की बहुत बड़ी ज्ञाता है, आपको बहुत ज्यादा कानून की जानकारी है, जरा मुझे ये बताएं इस बारे में। ठीक है,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात रिया खारिज कर रही है, कह रही है कि एक बार 35,000 रुपए उन्होंने मुझे दे दिए थे, फौरन मैंने पैसे वो लौटा भी दिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से फेवर ले रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करवा रही हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये फेवर लेना उसमें नहीं आएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में? देखिए, ये छोटे छोटे फेवर लेना वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, और डीवी एक्ट में लिखा है कि कोई भी महिला अगर शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती है तो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने के नाते उसके अधिकार होते हैं। तो ड्राई फ्रूट लेना, प्लेन के टिकट करना, वो एक वाइफ की रिलेशनशिप थी उनकी, भले ही शादी ना हुई हो, लेकिन कानून की निगाहों में लिव इन रिलेशनशिप की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। तो इतने छोटी चीजों पे आप मत जाइए। और ये जो है ये सिर्फ स्टोरी के लिए ठीक है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं बनता कि वो उन्होंने वो पैसे आपको पायल जवाब देना चाह रही है आभा जी। आभा जी आपको पायल जवाब देना चाह रही है। पायल, हाँ, यहाँ पे बात ड्राई फ्रूट लेने की नहीं है। अगर आप उसकी कोई बैंक ट्रांजैक्शन समझिए तो बैंक ट्रांजैक्शन में ड्राई फ्रूट कैन बी अ कोड वर्ड फॉर समथिंग एल्स। हम अपने सीए को बोलते हैं ना, कभी ये तो सीबीआई कहेंगे, ये तो सीबीआई बताएगी। देखिए, बट 32,000 रुपए इसमें कोई माने नहीं रखता है। 32,000 क्या, मैं 10 लाख 20 लाख अगर 50 लाख भी रिया ने खर्च किए तो एज ए लिव इन रिलेशनशिप उसका अधिकार बनता था। और सुशांत अपने मन से खर्च कर रहे थे। सुशांत ने जो है अपने 6 दोस्तों को भी वो चार्टर प्लेन से लेके फॉरेन हॉलिडे पे गए थे। और ये फिल्म स्टार्स की लाइफ होती है, वो अपने फ्रेंड्स को लेके घूमते हैं। रिया का कहना है कि अपने 6 पुरुष मित्रों को भी लेकर सुशांत सिंह राजपूत फॉरेन ट्रिप पे गए थे, प्लेन चार्टर। साथ में सारा अली खान भी थी। शी इज स्प्रेडिंग रॉन्ग। जो भी गए थे, ये इनकी लाइफस्टाइल होती है और इस पैसे से गुनाह नहीं होता। अगर सीबीआई और ईडी मनी ट्रांजैक्शन देख रही है तो वो प्लीज जो है कानून के हिसाब से देखें, जो एक ट्रायल कोर्ट में स्टैंड करेगा, ना कि उन्होंने प्लेन का टिकट खरीदा और ये खरीदा और ड्राई फ्रूट खरीदे। इससे कुछ भी केस बनने वाला है। आपको क्रिमिनलिटी दिखानी है, आपको क्रिमिनलिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि क्या क्राइम किया रिया ने। 9 दिन हो चुके हैं सीबीआई के, सीबीआई में दम है तो अरेस्ट करके जेल में डालें, उसके बाद वकील लोग आके बेल कराएंगे। तो आपकी ईडी क्यों नहीं दिखा रही है 15 करोड़ रुपए किस अकाउंट में गए रिया के? अगर मीडिया इतनी खबरें लेके आ रहा है तो क्यों नहीं रिया का अकाउंट दिखा रहा कि जिसमें रिया के अकाउंट में 10 करोड़ गए, 5 करोड़ गए? आप दिखाइए तो पहले। जी पायल। जी हाँ, 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन तो अगर गलत तरीके से हुई है तो उसको तो दिखाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर आभा जी समझ नहीं रही है। आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू से कि कोई जो शेयर्ड हाउस होल्ड रखती है तो शी डजंट हैव अ राइट। मैं भी एक लिव इन रिलेशनशिप में हूँ एंड आई नो हाउ इट इज टू काइंड ऑफ हैंडल द हाउस। मगर अगर मेरा पार्टनर इज नॉट मेंटली स्टेबल तो मैं बैठ के कंट्रोल ऐसे नहीं करती। मैं उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करूंगी, उसकी सिस्टर्स को इन्वॉल्व करूंगी, उनको घर से बाहर नहीं रखूंगी अगर मेरे पार्टनर को मेंटल इश्यूज है। अगर मैं वो स्टोरी बेचना चाहती हूँ आफ्टर हिज डेथ, और फिर अगर वो स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती तो मैं ड्रग एडिक्ट की स्टोरी बेचना चाहती हूँ। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो उसकी बैड हैबिट छुड़वा रही थी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली द लेडी इज स्मार्ट बट नथिंग कैन बी एडमिटेड इन द कोर्ट विदाउट प्रूफ। तो ईडी को प्रूफ दिखाना पड़ेगा। चलिए, मैं सुनील शुक्ला का रुख करना चाहूंगा। सुशांत के आप जिम फ्रेंड रहे, कुछ कहना चाह रहे थे आप बहुत देर से। सुनील बोलिए। जो वीडियो क्लिप आया उससे क्या खुलासा हो रहा है वो मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जी जी। ये जनवरी 2019 का वीडियो वॉइस क्लिप है जो रिया चक्रवर्ती ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो क्लिप में जो दर्शाया जा रहा है कि ट्रस्ट खोला जाए, जैसे एक फंड मैनेजर होता है, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने की बात हो रही है, पैसा किस तरह मल्टीप्लाई करे उस तरह की बात हो रही है। लेकिन उसके आगे का आप देखिए, 2 कंपनी फॉर्म हुई है, विविड रेज रियलिटी एक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें सुशांत सिंह राजपूत, शौविक चक्रवर्ती दोनों डायरेक्टर हैं। तीसरी कंपनी खुलती है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, ये 6 जनवरी 2020 में खुलती है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत और शौविक चक्रवर्ती है। केवल मतलब रिया की तरफ से उनके भाई उसमें डायरेक्टर हैं, यानी बेनिफिशियरी कौन है? जो पैसा निकालने की बात हो रही है वो तो खुलासा है कि वो पैसे निकाल रही थी। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी भी है। जो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड है, फ्रंट इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन, इट सेज इट इज इन्वॉल्व इन सोशल वर्क एक्टिविटी। दैट मीन्स ये जो बात हो रही थी कि आप ट्रस्ट खोल दीजिए, ट्रस्ट में पैसा डाल दीजिए, लेकिन उसका एक ही है बेनिफिशियरी, इसमें शौविक कौन है? रिया के ब्रदर है। ये इनडायरेक्टली ये पैसे पे भी कंट्रोल करने की बात, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिया और उसका परिवार सुशांत का इस्तेमाल कर रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं और सीधा पायल में अब आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए,
जो बातें इसमें कही गई हैं, जो रिया कह रही हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, तो जो सीबीआई जांच करेगी या फिर ईडी की जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इसकी क्या हकीकत है। लेकिन मेरा जो सवाल है बड़ा साधारण और बुनियादी सा सवाल है। अगर रिया कहती हैं कि वो लिव इन पार्टनर हैं, तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि भरोसा होगा, तभी तो साथ रह रहे थे। ऐसे में क्या कोई इस तरीके से फोन रिकॉर्ड करता है? कोई फोन रिकॉर्ड नहीं करता। मैं भी एक लिव इन पार्टनर हूँ, थोड़ा बैठ के मैं संग्राम के फोन रिकॉर्ड करूंगी। आई नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन माय पार्टनर। तो अगर कोई बैठ के अपने पार्टनर के फोन रिकॉर्ड कर रहा है और कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा है जहां पे कोई भी तरह की फाइनेंशियल टॉक है, तो वो ऑब्वियसली इसको बाद में प्ले करके ब्लैकमेल करना चाहती है। शायद यही थॉट प्रोसेस थी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल ले जाने का, जो एफआईआर में एक क्लॉज है, व्हेन अबेटमेंट टू सुसाइड एफआईआर फादर ने दर्ज करी। आप जब कहती है कि आप सुशांत सिंह राजपूत को उनकी फैमिली के साथ मिलने दे रहे थे, तो फिर जब वो चंडीगढ़ गया था अपनी बहन को मिलने, तब आपने 20-25 कॉल क्यों किए? आप कहीं ना कहीं कुछ तो कंट्रोल कर रही थी ना। और 8 जून को भी जब आप गई, उसके बाद 9 जून को सुशांत ने आपको फोन किया, मगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया। तो आप कंट्रोल तो कर रही थी, आप उसको बेग करवाना चाहती थी। आपके पास कुछ ताकतें थी या कुछ सबूत था जहां पर आप उसको कंट्रोल कर रही थी। तो आप एक मैनिपुलेटर है, मगर हमें सबूत चाहिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पार्टनर अपने फोन कॉल पे अपने पार्टनर के फाइनेंशियल टॉक्स या उसके मेंटल स्टेट को रिकॉर्ड नहीं करता। प्रूफ नहीं चाहिए होता प्यार का। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज अ वेरी मैनिपुलेटिंग एक्ट। और दाल में कुछ तो काला है, इसका बड़ा सीधा सा एक मतलब है। मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से, समय नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, इस ऑडियो क्लिपिंग में सुशांत सिंह राजपूत साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूं। यानी वो बहुत बीमार हैं, वो खुद ये बता रहे हैं। और वो मुंबई छोड़कर ये कहना चाह रहे थे कि वो गोवा जाना चाहते हैं। और जब उसमें रिया ने कहा कि हाँ पहले कुछ दिन वहां रहेंगे, उसके बाद देखेंगे, यानी कि वो एक्टिंग छोड़ना चाहते थे, वो गोवा जाना चाहते थे, मुंबई से दूर जाना चाहते थे। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये साजिश की तरफ इशारा करती है। जब एजेंसीज इस ऑडियो की जांच करेंगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस ऑडियो को रिकॉर्ड क्यों किया गया था। चलिए, समय मेरे पास फिलहाल इतना ही है। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शुक्ला जी, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ आभा सिंह जी जुड़ी हुई थी। आभा जी, आपका भी धन्यवाद। और डॉक्टर संदीप वोहरा और पायल रोहतगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात बहुत साफ है इस ऑडियो क्लिप से, जो संकेत मिलता है कि दाल में कुछ तो काला है। बहुत कुछ ऐसा है जो रिया अभी भी छिपा रही है।